Hi everyone, so this is Sanchit. Welcome to Rodha IPMAT, and today I have taken a topic which is highly requested and it's a major conundrum for a lot of 12th class students. So, how to manage boards while preparing for IPMAT? Now, someone will argue why boards is very important if I am preparing for IPMAT, or vice versa. Someone may say why IPMAT is important, I will just focus on boards. But if you want to get into IIMs directly after class 12th, you have to manage both. So why both are important, I will discuss that in the video as well. Let's start with a blueprint for all of you students of class 12th कि कैसे आप IPMAT के साथ boards को effectively manage कर सकते हो. And it looks challenging, but if you have a plan for it, it's not that challenging. You can easily navigate through it. ठीक है? So let's start the video. Now सबसे पहले आपको challenge समझना पड़ेगा कि challenge है क्या. So obviously you have a lot of pressure for 12th boards because obviously it's 12th ki mark sheet has been asked almost everywhere. It has its importance for sure. You cannot underestimate the 12th class ka boards ki ठीक है 12th के boards हैं देख लेंगे है ना. So this is the problem number one. You have to manage this. Second will be your IPMAT exam. Now IPMAT is a whole universe. I will say IPMAT ka universe. Because in IPMAT also there is not a single exam. There will be exams in December. For example, I am Bangalore BSc. There will be exams from March. There will be exams in May. There will be exams in June, July. So it's very, very challenging. A lot of different exams for a lot of different IIMs and different courses. तो सबको manage करके चलना शुरू में for a 12th class student is a bit difficult अगर क्योंकि experience भी नहीं है इस तरह का challenge कभी करना. Have you thought on this कि कोई भी और अगर क्लास आप देखोगे तो इस तरह का टास्क आपको नहीं देखना पड़ता कि आपको दो चीजें मैनेज करनी है. बट 12th क्लास also for the JEE students and also for the IPMAT students is very challenging to manage both the things, even for the NEET students who are in class 12th. तो ये सबको फेस करना पड़ता है. So 12th class is an uphill task for almost everyone. कोई भी एग्जाम आप अगर साथ में देना चाहोगे बोर्ड्स के तो वो एक डिफिकल्टी तो आएगी ही आएगी. तो उस चैलेंज को पहले समझना है कि ये डेफिनेटली एक चैलेंज है. सो ऑब्वियसली बोर्ड्स एंड IPMAT को जगल करना इज अ स्ट्रगल. बट अगर आपके पास राइट प्लान है तो ऐसा नहीं है कि ये मैनेजेबल नहीं है. अगर आप IPMAT इंदौर का अगर इनटेक देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम में एग्जाम को क्लियर करते हैं. ड्रॉपर्स का परसेंटेज जनरली कम होता है एज कंपेयर टू द फ्रेशर्स, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक मंथ बाय मंथ आपका प्लान होना चाहिए कि हर महीने क्या करना है, मुझे एक क्लैरिटी होनी चाहिए. सो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन वन ऑफ द इशूज जो लोगों में नहीं होती है. क्लैरिटी नहीं होती है, प्लान नहीं होता. सो क्लैरिटी और थॉट होगी तो यू कैन मेक अ प्लान एंड यू कैन देन फॉलो द प्लान. उस प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इट्स मैनेजेबल. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो. ऑल्दो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज क्लास 12th है और दो चीजें आपको जगल करनी है. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT और यू वांट टू गेट इनटू IIMs व्हिच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू डू. इवन स्टूडेंट्स गोइंग फॉर लाइक डॉक्टर्स एंड IIT विल इवेंचुअली गेट इनटू MBA, राइट. अ लॉट ऑफ देम. So why not get into an IIMs directly if I have to ultimately do an MBA only? That is the whole logic about students getting into IIMs directly after class 12th, even doing different streams, right? So that is again a positive signs for all of you. अब दूसरा चैलेंज ये आता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर वाई बोर्ड्स को इतना हेवीली इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है अगर हमें IPMAT का एग्जाम ही देना है तो. सो आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक एज वेल. बोर्ड्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आई बिलीव सो कि बोर्ड्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है IPMAT की प्रिपरेशन में. ऐसा क्यों है? क्योंकि अब बहुत सारे अगर IIMs के सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखोगे तो 10th और 12th मार्क्स, सो जो अकेडमिक्स आपके मार्क्स है ना उनका भी एक रोल है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 10%, समवेयर इट कैन बी 15%, 5%, कुछ भी हो सकता है. बट बहुत सारे IIMs 12th के स्कोर्स को और 10th के स्कोर्स को अपने फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंक्लूड करते हैं. तो ऑब्वियसली अगर एक मैट्रिक्स बोर्ड भी है तो आपको ऑटोमेटिकली हैव टू फोकस ऑन द बोर्ड्स. यू कैन नॉट स्किप इट कि उसको छोड़ देते हैं, राइट. अदरवाइज फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट मुश्किल हो जाएगा, राइट. सेकेंड पॉइंट विल बी द अकेडमिक सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस स्टडीज हो गया एंड मेनी मोस्ट अकाउंटिंग हो गया. ऑल दो सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल, और इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर PCM स्टूडेंट्स. जो आपके अकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो PI में एक हेवी रोल प्ले करेंगे. When you will go for the personal interview, अगर आप इंदौर की बात करोगे एज ऑफ नाउ PI का वेटेज 35% है. बट देयर आर कॉलेजेस लाइक शिलोंग which have 50% weightage to PI. Now if you cannot clear this PI,
you will not be able to clear the exam, right? So if there are 50% weightage of PI, can you imagine how you will navigate the PI if you don't know your academic subjects? So they will definitely ask you questions on mathematics, questions on your favorite subjects which you have studied in class 12. तो उन पे कमांड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीआई वाली स्टेज नहीं निकलेगी, और पीआई वाली स्टेज में अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर टेस्ट अच्छा हुआ है तो भी, आईपी मैट का एग्जाम अच्छा हुआ फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा कि बोर्ड्स को आप डिफरेंट मत मानो, आप उसको एज अ पार्ट ऑफ आईपी मैट ही मानो। अगर आप आईपी मैट टारगेट कर रहे हो तो इट शुड बी आईपी मैट प्लस बोर्ड्स rather than be just IP MAT alone. So it's not a stand alone thing, it's a duality. तो यहाँ पर duality है, आपको ये duality पे फोकस करना है ना? It's a duality of IP MAT plus boards. I hope it is clear. थोड़ा आगे चलते हैं। अब टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बोलोगे कि सर टाइमलाइन कैसे करेंगे फिर। सो टाइमलाइन के ऊपर भी थोड़ा सा लेट मी डिस्कस कि हाउ विल गो फॉर द टाइमलाइन, ठीक है। So if I talk about timeline here, तो timeline generally preparation, most of the students will start the preparation in August and end till May और it can be June as well, आप यहाँ जून भी कर सकते हो, और इवन जुलाई फॉर एग्जाम। तो आपको करना क्या है ना, अगस्त में यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड आपको फाउंडेशन पे फोकस करना है। सो दीज इनिशियल 5-6 मंथ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस बिल्डिंग होगी, आप सब्जेक्ट्स को स्टडी करोगे, क्वांट में कौन से टॉपिक्स होते हैं, अरिथमेटिक होता है, एल्जेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, नंबर्स होता है, मॉडर्न मैथ्स होता है, वीए में क्या क्या होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, आरसीज होता है, क्रिटिकल रीजनिंग होता है, पैरा जंबल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, पैरा कंप्लीशन होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मास्टर। एलआर में देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, डीआई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यू हैव टू मास्टर। तो ये जो 6 महीने हैं इसमें आपको सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है विच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द डिसिप्लिन पार्ट, क्योंकि आप खुद से बोर्ड्स और आईपी मैट को कैसे टाइम करना है, कैसे फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव द राइट मेंटोर्स। और मेंटोर्स आपको क्लासेस में मिल जाते हैं, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है चीज़ों को कैसे करना है, राइट। सो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए और अटेंड करिए रेगुलर क्लासेस वेर एवर यू आर ज्वाइंड, राइट। दैट वुड बी द सजेशन। इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी देन इट्स अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाना, वो चीज़ों को देखना, औरों से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। जनवरी और फरवरी में थोड़ा बोर्ड पे फोकस करना है। सो एग्जाम्स में स्कूल में जनरली दे विल बी दिसंबर जनवरी में दे विल बी प्री बोर्ड्स एज वेल। सो फोकस करें कि उनमें अच्छा एग्जाम अच्छे से दें प्री बोर्ड्स को, और बोर्ड्स की तैयारी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दें। तो आईपी मैट को आप मेंटेनेंस मोड में या रिविजन मोड में चला सकते हैं, एक रिवाइज मोड में आप यहाँ चला सकते हैं, बट ज़्यादा फोकस आईपी मैट का नहीं होना चाहिए जनवरी फरवरी में। टाइमलाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेब मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे, तो जब तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर बोर्ड्स के एग्जाम्स ओनली, यू हैव टू स्किप आईपी मैट इन दीज मंथ्स। देन मिड मार्च यू कैन से, मिड मार्च में बोर्ड्स एंड हो जाते हैं, तो यू कैन राइट हेयर मिड मार्च से अप्रैल और मई और जून, यहाँ पर पूरा फुल फोकस फुल ऑन आईपी मैट पे जाना है। आपको मॉक्स देने हैं बहुत सारे, यू हैव टू ट्राई टू गिव एटलीस्ट 50+ मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, रिविजन करना है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जो हम क्लास में कराते हैं, मैराथन्स करनी है, वर्कशॉप्स करनी है। इस साल भी काफ़ी मैराथन्स हुई थी चैनल पे, तो वर्कशॉप्स करनी है, एग्जाम स्पेसिफिक वर्कशॉप्स करनी है। जिपमैट की वर्कशॉप अलग होगी, इंदौर की अलग होगी, रोहतक की अलग होगी, IIM कोझिकोड BMS की अलग होगी, IIM बैंगलोर BBA DBA की अलग होगी, NPAT की अलग होगी। सो एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। तो टाइमलाइन एक क्लियर होना इज वेरी वेरी असेंशियल अगेन, क्योंकि अगर टाइमलाइन क्लियर नहीं होगी तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा, प्लान को फॉलो नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द रफ प्लान दैट यू कैन फॉलो। अगर ये प्लान आपको समझ में आता है तो यू कैन फॉलो दिस प्लान, दिस इज वेरी वेरी रिकमेंडेड आई वुड से। अब देखो बोर्ड्स और आईपी मैट, अगर आप मैथ्स है आपके पास तो काफी कुछ एक सिनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स आप सीखोगे 11th-12th क्लास में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपको 12th क्लास में मिलेगा। सो लॉट ऑफ चैप्टर्स, बाइनोमियल थ्योरम आपको 11th क्लास में मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 11th क्लास में मिलेगी। सो देयर इज अ ह्यूज सिनर्जी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। तो आपके पास अगर मैथ्स है ना तो आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आपके पास 11th-12th क्लास में मैथ्स है, यू आर अ मैथ्स का स्टूडेंट, तो यू कैन हैव अ सिनर्जी बिटवीन आईपी मैट एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस। इफ आई टॉक अबाउट आईपी मैट इंदौर, बहुत चैप्टर्स कुछ कॉमन है और सब्जेक्ट तो वही है। तो इफ यू कैन जस्ट हैव अ ग्रिप ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्कूल इटसेल्फ, तो आपको आईपी मैट में भी हेल्प करेगा। सो ये जो ओवरलैप है ना, इसको लेवरेज करना इंपॉर्टेंट है। सो बोर्ड्स की जो मैथ्स है, अगर वो आप अच्छा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपका एक क्वांट का अच्छा बेस बन जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन आईपी मैट एंड 11th-12th की मैथ्स एज वेल।
ठीक है, अगर आप आईपीमैट इंदौर की बात करोगे। सो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट्स आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो इट्स अ सेट थ्योरी, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, है ना। तो आपने अगर बोर्ड की प्रिपरेशन मैथ्स में अच्छी करी है तो यहाँ भी हेल्प करेगा, राइट। इंग्लिश जो वीआर इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होगा तो दोनों में हेल्प करेगा। रीडिंग हैबिट्स, वीआरसी, ग्रामर के नॉलेज, ग्रामर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो दिस इज फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है तो दैट विल हेल्प यू, द कॉन्सेप्ट्स रिमेन्स द सेम, जस्ट की एग्जाम स्पेसिफिक थोड़ा मोल्ड करना है अपने आप को। सो बोर्ड की प्रिपरेशन भी एक डुअल पर्पस रिवीजन के लिए आपको यूज करना है। ऐसा नहीं करना है बोर्ड्स को डोंट कंसीडर बोर्ड्स एज अ सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल सेपरेट नहीं मानना है कि कुछ अलग चीज है, उसको भी एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ही मानना है कि चलो यहाँ भी हम कर रहे हैं तो हमें हेल्प मिलेगा, हमें एक डिसिप्लिन मिलेगा, कुछ कुछ टॉपिक्स भी सेम मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लॉजिक बढ़ेगा, दैट्स द होल आइडिया। सो देयर इज अ सिनर्जी एज वेल व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड। इट्स नॉट अ कंप्लीट सिनर्जी बट अ पार्शियल सिनर्जी आई वुड से, राइट। सो यू हैव टू लेवरेज इट, इसको लेवरेज करना चाहिए। अब अगर नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो तो फिर एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ यू टॉक अबाउट आईपीमैट इंदौर और एनी अदर एग्जाम, बिना मैथ्स के आप इन एग्जाम्स को बिना मैथ्स को प्रिपेयर करें इन एग्जाम्स में जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम द एग्जाम अगर आप मैथ्स में वीक हो। तो क्वांट इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आईपीमैट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के हो, आर्ट्स के हो, तो कोशिश करो कि 1 घंटा हर दिन क्वांट को देना ही देना है। ये आपका फिक्स होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डे ऑन विच यू आर नॉट एबल टू गिव 1 or 2 hours ऑन क्वांट अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड की स्टडीज। सो कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तो क्रैम करने से ज्यादा बेटर रहेगा, रोट लर्निंग से बेटर रहेगा। कंसिस्टेंटली काम करो बेसिक्स पे, रोज 1-2 घंटा करो, थोड़ा थोड़ा करो, पुश करो अपने आप को, एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू आईपीमैट इंदौर, राइट। इट्स नॉट वेरी टफ। इफ यू गिव 6 months इन स्टडी 1 or 2 hours अपार्ट फ्रॉम द योर कोचिंग क्लासेस के अपार्ट में, अगर आप 1-2 घंटे भी स्टडी कर लोगे ना ऑन अ डेली एवरेज बेसिस मैथ्स को, तो बहुत ईजिली आप इसे नेविगेट कर सकते हो। सो दिस अगेन वन ऑफ द क्रूशियल टिप आई वुड से। अब जो रूटीन है आपका, सपोज आपका वीक डेज है, तो वीक डेज में जनरली मोस्टली बहुत सारे बच्चों का स्कूल भी होगा। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो कोशिश करो कि स्कूल के बाद आके थोड़ा सा बोर्ड्स पे आप स्टडी कर लो, और आप अगर बोर्ड्स के सब्जेक्ट की कोचिंग भी जाते हो तो वहीं पर उसको रैप करके 50% ऑफ योर स्टडी शुड बी ऑन बोर्ड सब्जेक्ट फॉर श्योर, एंड द रेस्ट 50% फोकस कैन बी ऑन आईपीमैट विच कैन बी 1 or 2 hours अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। अगर आप एक कोचिंग में इनरोल्ड हो तो कोचिंग इटसेल्फ इज सफिशिएंट, अगर वो अच्छे से आपको करा रहे हैं तो वहीं पर आप कोशिश करो कि जो 50% आउटपुट है वहीं से आपका आ जाए, और 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडी यू कैन डू ऑन द वीक डेज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी चैलेंजिंग होता है। आप स्कूल जा रहे हो सुबह 8 से 2-3 एंड देन you will come back and then you will do the coaching for IPMAT or coaching for commerce subjects as well or your subjects as well, and then you have to study for both. It's very challenging. So daily अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ वीकडेज पे 50-50% होना चाहिए, और वीकेंड्स में आपको IPMAT पे 75-80% फोकस करना चाहिए। आई वुड से 75% फोकस आपको IPMAT पे कर देना चाहिए। तो वीकेंड्स जब भी आपको आ रहा है, आपको पूरा पूरा दिन अगर मिल रहा है, तो उस पर कोशिश करो कि यू गेट दोज 5 or 6 hours डन। कोशिश करो कि इन दिनों पे आप 5 घंटे तो कम से कम डेली जो है उस पर आप आईपीमैट पे फोकस करके पूरे वीक को रिवाइज करो, अच्छे से टारगेट करो, बिकॉज बोर्ड्स एंड आईपीमैट में एक डिफरेंस है। आईपीमैट इज एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, इट डिमांड्स दैट एफर्ट। it's not as easy at boards is still manageable. IPMAT is a different game altogether, so you have to be consistent, you have to use your weekends, so that is very important. डेली नॉन नेगोशियल में मैं कहूंगा कि वीए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आपको डेली करना चाहिए। इफ यू रीड डेली फॉर हाफ एन आवर और 1 hour, यू विल सी द चेंजेस इन आईपीमैट। सो एक आरसी कर लिया रोज, नॉवल पढ़ ली, वोकैब के कुछ स्नैप्स देख लिए रोज, तो ये रोज अगर 30 minutes भी आपने कर लिया ना आईपीमैट तक, तो you will find a notable change over a period of time. But this cannot be done within 1 month or 2 months. It has to be done over 6 or 7 months, right? So कोशिश करो कि VARC is equally important और उसको as a part of routine बनाओ आप, है ना? So that I would suggest. अब सेक्शन वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे टिपिकल सेक्शन अगर आईपीमैट की बात करें तो क्वांटिटी होता है, इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, स्पीड पे फोकस करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उनको भी सीखना है, एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, एंड इट्स वेरी इंटेंसिव। ये सिलेबस काफ़ी इंटेंसिव है, काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको शुरू से लेके चलो और इसको हाई प्रायोरिटी पे रखो। What about VARC? VARC is a subject which can be grown over time. अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा भी डेली करोगे ना, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांट। क्वांट विल डिमांड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, बट VARC में ऐसा नहीं है।
डेली थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो ओवर टाइम आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा. सो डेली आरसी कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, वोकैब के ड्रिल कर सकते हो, ग्रामर को प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करो डेली, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द मैजिक, राइट. LRDI में दिस इज समथिंग डिफरेंट. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोर्ड्स. सो यू हैव टू डिवोट सम टाइम. तो वीकेंड्स पे ऐसा रख सकते हो कि 2-3 घंटे LRDI हर वीक आप करोगे ही करोगे. यू कैन प्रैक्टिस सम DI के सेट्स, राइट. ग्राफ्स रीडिंग कर सकते हो, LR के 1-2 टॉपिक्स वीकेंड्स पे कर सकते हो. तो क्योंकि इनका ओवरलैप नहीं है तो इनको थोड़ा सा आपको एक जगह देनी पड़ेगी अपने टाइम टेबल में. डोंट इग्नोर LRDI. ध्यान रखना, LRDI को इग्नोर कर देते हैं ये बच्चे, एंड बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग पार्ट है. इफ यू टॉक अबाउट जिप मैट और IP मैट रोहतक अलग सेक्शन आता है इसका, IIM बैंगलोर BSc BBA अलग सेक्शन आता है. तो इन एग्जाम्स में इसका अलग सेक्शन आ रहा है, तो इस पे फोकस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. IP मैट इंदौर में भी इनके एक दो सेट आते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट है ना, रिमेंबर दैट. तो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए. सो देन कम्स द मॉक्स. नो, बिना मॉक्स के IP मैट इंदौर या IIM कोझिकोड BMS इस तरह के एग्जाम्स को निकालना इज नॉट पॉसिबल. इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब सबके पेपर्स अवेलेबल हैं, देयर हैव बीन पेपर्स डन फॉर वंस. अगर पेपर नहीं होता तो मॉक्स का इतना सेंस नहीं बनता है, बिकॉज अभी पता ही नहीं होता कैसा पेपर आने वाला है. बट अब सभी एग्जाम्स के ऑलमोस्ट पेपर्स हैं, सो यू कैन गो फॉर द मॉक्स. दिसंबर से आइडियली यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स एटलीस्ट 1 per वीक, एंड यू कैन इंक्रीज इट टू 2 per वीक और 3 per वीक पोस्ट बोर्ड्स एज वेल. सो बोर्ड्स अगर आपका हो जाएगा तो उस फिर आप फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं. 3 मॉक्स आप एक वीक में दे सकते हैं फिर, है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉक्स को शुरू से ही दिमाग में लेके चलना है कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके देन आई हैव टू गिव मॉक्स, है ना. अब मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक रियल टाइम स्टिमुलेशन होता है, राइट. सिमुलेशन होता है, आपको पता चलता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी कौन से सेक्शन में टाइम जा रहा है, कौन से क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ. अदरवाइज बिना टेस्ट के यू विल नॉट गेट एनी फीडबैक. विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट क्लियर दीज एग्जाम्स, राइट. फीडबैक 2 लोगों से मिल सकता है, एक तो मेंटोर से मिल सकता है और एक मॉक से मिल सकता है. दोनों को लेके चलना है. सो सिली मिस्टेक्स कहीं हो रही है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, कोई गलत सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, सो दिस ऑल हैज टू बी एनालाइज्ड बाय मॉक्स. ये सब एनालिसिस मॉक से ही होगा. मॉक्स जब आप दोगे, स्पीड और एक्यूरेसी को देखोगे, इजी क्वेश्चन मिस तो नहीं हो रहे, हम गलत क्वेश्चन तो सेलेक्ट नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज का भी आइडिया आपको मॉक से ही पता चलेगा. अभी आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है. व्हेन यू कंसिस्टेंटली गिव मॉक्स यू विल ट्राई टू गेट एनालाइज दैट पैटर्न. अच्छा, यहाँ कमजोरी है, यहाँ पर वर्क करना है. सो मॉक्स एंड एनालिसिस इज अगेन आई विल से एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत सारे बच्चे से इग्नोर कर देते हैं और फिर वो IP मैट में अच्छा नहीं कर पाते. नाउ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइंडसेट इज आपको पैनिक नहीं करना है, राइट. इट्स नॉट लाइक इट्स मैनेजेबल. मैंने शुरू में भी कहा था यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई वुड से इट्स मैनेजेबल. ये मैनेज हो जाएगा. बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जनरली पीक लेटर करते हैं और अच्छे से करते हैं. ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं वो बोर्ड्स वाले ही होते हैं. दे आर एबल टू डू विद 12th क्लास बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू हैंडल दैट प्रेशर. तो प्रेशर जितना ज्यादा है उतना अच्छा है. आप ऐसे समझो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैब इट, राइट. IP मैट किसको रिपोर्ट करेगा? स्मार्ट एफर्ट को करेगा, कंसिस्टेंसी को करेगा. अगर आप डेली कर रहे हो, स्मार्टली कर रहे हो, मेंटोर की गाइडेंस में कर रहे हो, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. Now, if you want to prepare for IP मैट 2026, this is the solution for all of you. अगर आपको इतना हेडेक नहीं चाहिए, आपको मेंटोर्स यहाँ अच्छे मिल रहे हैं, so QA, LR and DI I will be taking. So these are pure academicians. You can watch our demo videos and YT as well. VRC will be taken by Sharvari ma'am and Brijesh sir, ना. थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ फैकल्टी पे थोड़ा देखो, लेक्चर्स देखो हम लोगों के. So you can use the YouTube channel. You can join in this batch. एंड अभी तो ये आपको 24,999 के डील प्राइस पे मिल रहा है वुड से. सो इट्स अ डील विच आई वुडंट मिस फॉर द इनिशियल 50 एनरोलमेंट्स ओनली विच इज फिलिंग फास्ट. सो मेक श्योर कि आप इसे एनरोल कर लो. इसमें आपको इन डेप्थ क्लासेस मिलेगी. सो नो नीड टू गो फॉर एनी बुक्स और एनी अदर मटेरियल. बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है. ये वाली बुक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. सो डेडिकेटेडली एक ही जगह अगर आपको सब मिल जाएगा. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर IP मैट 26 आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ड्रॉपर को तो ज्वाइन करना ही चाहिए आई वुड से, बिकॉज एक साल आप पहले ही पीछे चल रहे हो. एंड 27 वाले जो एक्सपीरियंस है वो भी 11th क्लास के साथ इस बैच को कर सकते हैं, सो दैट 11th में ही उनकी प्रिपरेशन हो जाए. नाउ व्हिच आर द एग्जाम्स वी आर टारगेटिंग? IP मैट इंदौर भी है, रोहतक भी है, जिप मैट, IIM के BMS, IIM बैंगलोर BBA, IIM बैंगलोर BSc, राइट. Even if you're going for NPAT, SET, CRIST, all of these exams are being covered. Even CUET का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है तो आप इस बैच को कर सकते हो. And we have Ravi sir की guidance as well, who is a legend I would say in the field of CAT. So उनके भी lectures होंगे, उनकी भी guidance है आपके पास. तो इतनी strong academic team है आपके पास. So what could go wrong, right? It's a steal deal at this price. I would say it's very good value. तो make sure कि आप इसको enroll कर लो.
एंड वी प्रॉमिस यू द क्वालिटी मॉक्स आपको मिलेंगे. देखो आपको 50+ मॉक्स वी आर प्रॉमिसिंग, 200+ सेक्शनल्स वी आर प्रॉमिसिंग. सो दिस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एग्जाम्स करना है तो सेक्शनल और मॉक्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल, राइट. यू विल गेट 15+ फिजिकल बुकलेट्स एज वेल. इन डेप्थ लाइव क्लासेस होगी. फॉर एग्जाम्पल स्पीड मैथ्स की मान लो 5-6 क्लासेस हो रही है. सिंपल इक्वेशन की विल गेट 4-5 क्लासेस. एवरी टॉपिक विल गेट मल्टीपल क्लासेस सो दैट विल चैलेंज योर ब्रेन टू परफॉर्म बेटर. सो दैट आई वुड से. तो वेबसाइट विजिट कर लो, नंबर्स को कॉल कर लो. व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कोई क्वेरी पूछ सकते हो. अगर कोई क्वेरी है तो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. उस पर क्वेरी पूछ सकते हो अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो. इट्स फ्री. Our portal has a lot of free lectures. Make sure you log into the portal and check those videos, है ना, सीख सकते हो. So this is a dream team I would say. Make sure कि एक ही बार आपको अगर 12th में हो तो 12th में ही अगर आपका IP मैट में हो जाए ना कहीं अच्छी जगह, there's nothing better than that. Feels surreal. So I want you, all of you, to join the batch and trust us, and obviously we also trust you that you will be coming out with a flying colors. So thank you very much. If you have any comments also, you can comment on the video, and please like the video, please subscribe to the channel for such amazing quality content. Thank you. Bye bye.